الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت
الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم
بهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد يا ملين الحديد الدعود يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب أي مفرج هم يعقوب أي منفس غم يوسف صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تسلي عليهم أجمعين وفل بما أنت أهله ولا تفل بما أنا أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. پالنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا اسیران کربلا یتیمان کربلا پیش کرتے پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک الحق المبین قاسم الجبار المبیر الولاء المدرکی ربی شہداء صدقین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المختار النبی الامی العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی علی عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل اہل بیتہ وطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فارس الاعجاز ادرکنی یا بسال مہدی ادرکنی یا بالقاسم ادرکنی ولا تدانا فإن عاجز الذلیل. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना शहर रमजान। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ान मोहतरम, आप मौजू को देखकर ही समझ गए होंगे कि फ्लायर को देख करके मौजू क्या है। जी हाँ, फजीलत अज़मत शान आमाल माह रजब। माह रजब का महीना कितने फजीलत वाला महीना, बस एक हदीस से हम समझ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इल्म का मजमा है, आप सब जानते हैं माह रजब का महीना क्या है। और हर साल माह रजब के महीने आने से पहले, इस्तकबाल से पहले मैं इस फजीलत को जरूर बयान करती हूँ, क्योंकि हम और आपको ये रिचार्ज हो जाए। और दूसरा, जब भी हम ऐसे लेक्चर्स को, मजलिसों को, जश्नों को जब सुन लेते हैं, हमारी रूह ताज़ा हो जाती है, रूहानियत में इजाफा हो जाता है, नूरानियत में इजाफा हो जाता है, इबादतों में इजाफा हो जाता है। अजीज़ान मोहतरम, माह रजब का महीना, कहा नाम से ही एक फजीलत, अल्लाहु अकबर, एक फजीलत छलकती है। माह रजब का महीना यानी ताजीम का महीना, एहतराम का महीना। रजब के माने एहतराम है और ताजीम है। चलिए, अहदीस, मासूम की हदीस है, खुदावंद आलम खुद कह रहा है, माह रजब के महीने में, जो माह रजब के महीने में रोजा रखता है, मैंने उसके लिए एहतराम करना वाजिब करार, यानी वो मेरे लिए, यानी मैं उसके लिए, खुदा कह रहा है मैं उसका एहतराम करता हूँ, उन गुरों का एहतराम करता हूँ, उन लोगों का एहतराम मैंने मेरे लिए वाजिब करार दे दिया है। यानी खुदा खुद उसका एहतराम करता है, उसकी इज्जत व अजमत, हाय इस्मतों को हाय हाय बरकरार रख देता है जो माह रजब के महीने में रोजे रख लेता है। इसलिए माह रजब यानी एहतराम, रजब ताजीम, अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा माह रजब के लिए कहा गया कि असब, यानी असब का माना ये है, इस माने में ही काफी है, बहुत कुछ मिल जाएगा। असब के माने ये है कि उंडेल देना, ओवरफ्लो, देना नहीं, उंडेल देना, ओवरफ्लो। हाय हाय अजीजान मोहतरम, कहा कि मैं इतनी रहमत अता करता हूं कि मैं रहमतों को उंडेल देता हूं। सिर्फ हमें लेना है उन रहमतों को, उस खुदा के फजल को माह रजब के महीने में लूट लेना है। खुदा दे रहा है हम और आपको। अजीजान मोहतरम, यहाँ कहा गया, हदीस भी कहती है कि तुम्हारे पास वो माह रजब की दुआओं की कुंजियां है, उन दुआओं की, अस्कार की, इबादतों की, माह रजब की कुंजियों को लेकर जाओ, खुदावंद आलम की रहमत को लूट के ले आओ, क्योंकि खुदा असब उंडेल देता है रहमतों को। जाओ, रहमतों को लूट के ले आओ माह रजब के महीने में। जाओ, खुदा के इन अस्कार से, इन तस्बीहों से, क्या तस्बीह, क्या अस्कार, क्या दुआएं, क्या इबादतें, लेटर ऑन इस लेक्चर में आएगा। अजीजान मोहतरम, कहा उन कुंजियां, चाबियां लेकर चले जाओ और खुदा के फजल के खजाने को लूट के ले आ जाओ। इतना ही नहीं, फिर खुदा कह रहा है कि हाँ, रिवायत ये कहती है, तीसरा नाम, एक है रजब, एक है असब, दूसरा है असम। यानी असम जिसका माना ये है काट देना, कट जाना, यानी आप दुनिया के फजूल कामों से
इस महीने में, माह रज्जब के महीने में कट जाओ। जैसे हम इंतजार करते हैं माह रमजान के महीने का, नहीं कहा माह रमजान के महीने में तुम्हें फुल फ्लेज तैयार होने के लिए पूरी एक नूरानियत के साथ, एक नफ्से हाय हाय, एक नफ्से लव्वामा के हथियार के साथ, वो रूहानियत के साथ पूरे तैयार हो के माह रमजान में दाखिल होने के लिए कहा कि माह रजब में तुम्हारा एक मॉक्स एग्जाम है। वो तो माह रमजान का महीना तो दैट्स एन फाइनल एग्जाम। वो फाइनल एग्जाम की देखिए बच्चों के लिए भी हम और आप फाइनल एग्जाम, जब 10th का बोर्ड एग्जाम आता है उससे पहले प्रीलिम्स होते हैं, राइट। इंडिया में हम कहते हैं प्रीलिम्स, अगर बाहर कंट्रीज में कहते हैं मॉक्स एग्जाम। लेकिन वो मॉक्स एग्जाम होना जरूरी भी है, प्रिपरेशन होना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि मैं कितना प्रिपेयर हूं, बच्चे को देखना जरूरी है। हाँ, मॉक्स में, प्रीलिम्स में मुझे इतने मार्क्स आए हैं तो मुझे फाइनल में बहुत ज्यादा तैयारी करनी है। अगर कम आ गए, अगर जरा बराबर आ गए तो फिर वो खुश होगा कि हाँ मैं काफी हद तक तैयार हूं। उसी तरह माह रजब का महीना भी हम और आपके लिए रूहानियत की तैयारी है, नूरानियत की तैयारी है, इबादतों की तैयारी है, स्पिरिचुअलिटी की तैयारी है। अजीजान मोहतरम, कसरत के साथ इबादत करने की तैयारी है, हाँ खुलूसियत की तैयारी है, और खुदा पर भरोसा रखने की एक तैयारी है। अचानक जाकर माह रमजान में दाखिल होकर फिर शुरू करें तो एंड ऑफ द रमजान जाकर खुलूसियत आती है, नूरानियत। कहा नहीं, अभी से तैयार हो जाओ। अजीजान मोहतरम, कहा असम यानी आप दुनिया की चीजों से कट जाओ। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूं कि माह रजब के महीने में वो तैयारी ना करो कि हाँ मैं क्या सिलाऊं क्या ना सिलाऊं, ये टेलर वो लेस, ये ले फला कपड़ा, ये कपड़ा, वहां भागना इधर भागना, ये तमाम चीजें माह रजब में ना करो। ये उससे पहले कर लो। मेरा मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है, इससे पहले कर लो। अगर वाकई आपको जरूरत है तो कर लो। यानी एक चीज, ये चीजें सिर्फ एक मैं प्रैक्टिकल मिसाल दे दी। अगर दूसरी मिसाल अगर मैं दे दूं कि घर को रंग और रोगान कराना है तो माह रजब का महीना आ रहा है, मैं कहूं नहीं रंगो रोगान माह रजब में ना करूं क्योंकि वो इबादत का महीना है। जैसे हम रमजान को सेव करके रखते हैं कि माह रमजान में मैं ये नहीं करूंगी, पिकनिक पे नहीं जाऊंगी, फला नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे रोजा रखना है पूरे माह रमजान में, राइट। और मैं ये सोचती हूँ मेरी एनर्जी इतनी नहीं रहेगी कि मैं ये तमाम दुनिया की चीजें करूं। नहीं, कहा माह रजब भी यही है, आसान कट जाओ, फुजूल, ये नहीं कि पूरा कट जाओ सिर्फ इबादत, मैं ये नहीं कह रही, कट जाओ फुजूल दुनिया की चीजों से माह रजब के महीने में कट जाओ। बड़ा बरकतों का महीना है, बड़ा रहमतों का महीना है। मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो, मौलाए कायनात फरमा रहे थे माह रजब का महीना तुम्हें माह रमजान में आसानी कर देगा। मौलाए कायनात फरमा रहे हैं बड़ी आसानी कर देगा। देखिए क्या तैयारी करवा रहा है माह रमजान की खुदा माह रजब से। माह रजब और शाबान, यानी आप माह रजब में बीज बो रहे हैं और वो बीज फट कर बाहर निकलता है, एक छोटा सा ग्रीन स्टेम बाहर निकल रहा है माह शाबान में, और माह रमजान में वो प्रॉपर ग्रीन छोटा सा झाड़ बढ़ रहा है माह रमजान में। यानी बीज को, रूहानियत की, नूरानियत की बीज को माह रजब में बोलो माह रजब में, और लूट लो खुदा के रहमत का खजाना। अच्छा, मैंने जो दुआएं
कि सरनामे कलाम किया, उस दुआ से आप समझ गए होंगे मैंने कौन सी दुआ साहिब इल्म का मजमा है कि मैंने कौन सी दुआ का सरनामा कलाम किया। मैंने रिसालत माप की वो दुआ जो मुफाती में मौजूद है, मैं मुफाती लेकर बैठी हूँ, मुफाती में मौजूद है कि मुफाती में माहिर, इसलिए मैं ये माहिर रज्जब की शब्द से पहले कह रही हूँ। माहिर रज्जब की, जैसे माहिर रमजान का हम चांद देखते हैं वैसे माहिर रज्जब का भी चांद हमें देखना है। माहिर रज्जब का चांद, रिसालत माप माहिर रज्जब का चांद को देखकर ये दुआ करते थे, बेहतरीन, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वंडरफुल माने हैं। मीनिंग्स पर तवज्जो कर लें, बड़ा काफी है। अजीजान मोहतरम, ये दुआ के माने में पढ़ लूं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना शहर रमजान। यानी कह रहा कि चलिए पहले इंग्लिश के माने कह दूं, ओ अल्लाह, pour out much blessings for us in Rajab and Shaban। यानी pour, बरसा दे तेरी रहमत को माहिर रजब के महीने में। इतना ही नहीं, make us reach माहिर रमदान and take up, हाय हाय, uprightness, fasting and prayers। केयरफुल, ये भी देखिए दुआ में है, केयरफुल ये तो मुफाती में है, आपको जरूर पढ़नी है ये दुआ इंशाअल्लाह। ये याद करके पढ़िए कि ज़ैनब बापा ने कहा था, सवाब आपको भी मिलेगा और थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए। अजीजान मोहतरम, फिर इस दुआ में है केयरफुल इन आवर स्पीच, हाय हाय, केयरफुल इन आवर स्पीच। और फिर कहा टर्निंग द आइज फ्रॉम अगलीनेस। यानी पहले ये दुआ, अभी चांद को देख के दुआ मांग रहे हैं माहिर रमजान के लिए। यानी सोचो क्या तैयारी माहिर रमजान की है। कहा कि हम ये दुआ में कह रहे हैं, परवरदिगारा तू रहमत नाजिल फरमा माहिर रजब और माहिर शाबान में, और परवरदिगारा बड़ी हिफाजत के साथ, सेफली, बड़ी हिफाजत के साथ तो मुझे माहिर रमजान में दाखिल कर। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं, परवरदिगारा तू मुझे मेरी जबान और मेरी आंख की तू हिफाजत कर ले, हाय, क्योंकि मेरे माहिर रजब में मेरी जबान की तू हिफाजत कर ले तो मेरी आंख की तमाम फहश से मैं मेरी आंख से न देखूं, परवरदिगारा तो हिफाजत कर ले, किसी के ऐब को ना देखूं, हिफाजत कर ले, किसी गुनाहों को ना देखूं, हिफाजत कर ले, किसी ऐब को बयान ना करूं, हिफाजत कर ले, किसी की गीबत ना करूं, तो हिफाजत कर ले, मेरी जबान और आंख की तो हिफाजत कर ले। हम क्यों कह रहे हैं जबान और आंख की हिफाजत कर ले? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मेरी जबान की हिफाजत तू कर लेगा, मेरी आंख की हिफाजत तू कर लेगा, ए परवरदिगारा तू मेरी सोच को बेहतर बना देगा, क्योंकि मेरी सोच जो होगी वो बेहतरीन सोच होगी, तो वाकई मेरी इबादत में खुलूसियत जरूर होगी। अल्लाहु अकबर। अजीजान मोहतरम, वो खुलूसियत के लिए, वो खुलूसियत के लिए, वो रुबूबियत के लिए, वो नूरानियत के लिए, वो इबादतें कबूल होने के लिए, वो तमाम इबादतें खुदा के बारगाह रहमत तक पहुंचने के लिए हम माहिर रजब से शुरू कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी मैं कंप्लीट ये कहूं, शायद आप मेरी हर लेक्चर में ये जरूर जुमला सुनते होंगे कि इंसान जब जबान और आंख की हिफाजत कर लेता है, वाकन वाकन वो पॉजिटिव जरूर हो जाता है, हर एक के लिए बेहतरीन सोच रखने वाला इंसान बन जाता है। सामने जितनी भी बदतरीन हरकत अगर सामने वाला कर रहा हो, बदतरीन से बदतरीन हरकत, वर्स्ट टू वर्स्ट अगर
हरकत तुम्हारे लिए सामने वाला कर रहा हो, तब भी तुम्हारी सोच उसके लिए बेहतरीन होगी। पूछो क्यों? चलिए हदीस नहीं है, ये हदीस तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूं कि हम I am doing nice to others because he is not the better person, because I am the nice person, I am the good person, because I have got the good behavior, क्योंकि मेरी बेहतरीन अखलाक है, इसलिए मैं सामने वाले को बेहतरीन अखलाक से पेश आ रहा हूं। मैं उसे बेहतरीन अखलाक से पेश आ रहा हूं, इसलिए नहीं कि वो बेहतरीन अखलाक वाला है, इसलिए कि मैं बेहतरीन अखलाक वाली हूं। वो कितना भी बदतर क्यों ना हो, लेकिन मैं पेश बेहतरीन आ रही हूं। यही दुआ है, यही दुआ है माह रज्जब की। हिफाजत कर मेरी जबान की, हिफाजत कर मेरी आंख की, तब जाकर सोच बेहतरीन सोच होगी। अजीजान मोहतरम, देखिए इंसान कितना भी बेहतरीन चीज, बाज ऐसे होते हैं कि आप उनके लिए, देखिए बाज ये कहते हैं कि अगर आप उनके लिए, हमारी जबान में कभी निकल जाता है, कितना भी आप करें, गर्दन काट के भी उनके सामने रख दें तो भी फुटबॉल ही है वो गर्दन, हो सकता है उसके लिए, लेकिन मेरी अखलाक बेहतरीन परवरदिगारा तू बना दे मेरी जबान की हिफाजत और मेरी आंख की हिफाजत करते हुए, क्योंकि तू माह रजब में परवरदिगारा उसको उंडेल रहा है, रहमत को तू उंडेल रहा है, वो उंडेलने वाली रहमत को मैं हासिल कर लूं। देखिए हासिल करने वाले का एक तरीका भी होता है। देखिए बरसात खुदा की रहमत है, वो बरस रही है, जब वो बरसती है खेत में तो खेत उगने लगता है, वो खेत फल देता है, फूल देता है, खुशबू आती है, तमाम लोगों का फायदा कर देता है। अगर वो समंदर में बरस रहा है, समंदर के पानी से मिलकर बहने लग जाता है, नदी में बरस रहा है, वो नदी के पानी में मिल जाता है, अगर वो चीकड़ में बरस रहा है तो वो चीकड़ बन जाता है, बराबर। कहीं वो नजासत में बरस रहा है, वो नजिस बन जाता है। तो हमें देखना है कि हम कैसे वो उंडेलने वाली, खुदा जो उंडेल रखा है, उस रहमत को हासिल करने वाले हैं। खैर अजीजान मोहतरम, कहा गया कि माह रजब में के महीने में कहा रोजे आए, अल्लाहु अकबर, माह रजब के महीने में दुनिया से कट जाओ, ट्राई करें, थोड़ा थोड़ा ट्राई करें। और देखिए आप ट्राई करें तो आपके घर वाले ट्राई करेंगे, क्योंकि पहले तो हमें घर में माहौल बना, माह रमजान तो ऑटोमेटिकली माहौल बन जाता है, यूं ही माहौल बन जाता है, शहर में माहौल बन जाता है, और कहा गलियों में माहौल बन जाता है, और पड़ोसियों में माहौल बन जाता है। अगर कोई पड़ोसी मुसलमान है, इफ्तारी आ रही है, जा रही है, रोजे रख रखे हैं, इबादतों में मशगूल है, कुरान की तिलावत है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पूरा माहौल माह रमजान में बन जाता है, बट वेरी डिफिकल्ट इन माह रजब। लेकिन कहा गया कि आप माहौल को बनाओ, आपके बहन माहौल को बनाएंगी, आपकी भाभी माहौल को बनाएंगी, आपके घर वाले माहौल को बनाएंगे, फैमिली माहौल को बनाएंगी। धीरे धीरे हर घर में ये प्रैक्टिस आ जाएगी, तो ये प्रैक्टिस के साथ ये माह रजब का एक माहौल बन जाएगा, जैसे माह रमजान का बन जाता है। खैर अजीजा, मैं जानती हूँ माह रजब में सुफरे का बुलाओ, सुफरा रखो, सुफरे में बुलाओ, लोग आए, रोजदार आए, खाए चके, एक दूसरे को सलाम करे, मोमिन मिलने वाला मोमिन भी सवाब, सलाम करना भी सवाब, घर में सुफरा बिछाना भी सवाब, क्योंकि हमने निस्बत दे दी है इमाम से, बराबर। माह रजब में चाहे खीर बनाओ, पूरी बनाओ, जो सुफरा डालो, आप आपके मुताबिक जो भी आप सुफरा डालेंगे आप डालें, आप खिलाएं, आपकी हैसियत के मुताबिक आप खिलाएं, लेकिन इबादतों में कोई खिलवत ना हो, इबादतों में कैफीफ ना समझे माह रजब की इबादत को। अजीजान मोहतरम,
क्योंकि उस माहौल में अगर रोजदार आ रहा है, खिला रहे हैं रोजदार को भी, आपको भी सवाब, उसको भी सवाब, इबादतों में सवाब, रोजे, वो रोजे में आकर अपने सुफ्रे में बैठकर फिर रोजे के साथ वो दुआएं मांग रहा है, अस्कार पढ़ रहा है, तो वो भी इबादत है। कि खैर इबादतों का हम और आपको एक माहौल बनाना है, और माहौल बनाना है रोजों का। देखिए माह रजब के महीने में रोजे, हाय, कहा किसी शख्स ने आके, एंड ऑफ माह रजब था, किसी ने आके मासूम से कहा, मौला माह रजब का महीना चला गया, मैं रोजा नहीं रख सका। तो इमाम फरमा रहे हैं, तूने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। माह रजब के महीने में रोजा रखता तुझे कितना सवाब मिल जाता। तो कहा, मासूम की हदीस बिहार में मौजूद है, माह रजब के महीने में अगर एक रोजा रख लेता है, एक रोजा, तो कहा गया पहला एक रोजा रखा उसे मौत की मंजिल आसान हो जाएगी। एक रोजा बेहतर है, अब पहला रोजा रखो, दूसरा रखो, तीसरा रखो, या 13, 14, 15 रख लो, या लास्ट माह रजब के रख लो, या 24वां रोजा भी बहुत 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 मुशर्रफ है। 24वां रोजा, जुमेरात का रोजा, जुम्मा का रोजा, माह रजब का, सैटरडे का रोजा माह रजब का। यानी आप कोशिश करें, कोई ना कोई अगर रखने वाले जिनके पास ताकत है, हिम्मत है, एनर्जी है, और जो रख सकता है, वो माह रजब में कोशिश करें, पहली, दूसरी, तीसरी, 13, 14, 15, फिर उसके बाद आखिरी 3 रोजे, फिर 27वां रोजा, 13 रजब का रोजा, वो तो 13, 14, 15 में आ जाएगा, और जुमेरात का रोजा, जुम्मा का रोजा, सैटरडे का रोजा, ये तमाम रोजे, 24वां रोजा, ये तमाम सेलेक्टेड रोजे तो अब बिल्कुल ना छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े। हिम्मत जो रखता है और हिम्मत करे, आज तो साइंस भी कह रहा है, यहां तक के देखिए बाज औकात, अभी रोजे का जिक्र आ गया तो मैं कहती चली जाऊं, बाज औकात चाहे वो माह रमजान के लिए हो, चाहे शाबान के लिए, चाहे रजब के लिए हो, बाज औकात अक्सरियत हम डायबिटीज वाले थोड़ा फियर, डर है कि डायबिटीज वाले डर जाते हैं जल्दी के, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और या तो मुझे भूख लग जाएगी। अगर आप जहन में रखोगे तो वैसा होगा। आई नो डायबिटीज 1 है, डायबिटीज 2 है, किसी को बहुत ज्यादा हाई डायबिटीज पेशेंट भी है जो वाकन उसका जिस्म कबूल नहीं करेगा रोजा रखने के लिए। चलिए, जिस शख्स को डायबिटीज या कोई और बीमारी हो जिसके लिए उसका जिस्म रोजा रखने को कबूल नहीं करता, यानी उसका जिस्म के लिए वो खतरा है रोजा रखना, तो वो रख नहीं सकता, उसकी बात अलग है, उसकी बिल्कुल बात अलग है कि उसके लिए उसको रोजा रखना, जिस्म के लिए इतनी डायबिटीज है या इतनी कोई और बीमारी है कि वो रोजा नहीं रख सकता, वो कैटेगरी में आ जाएगा कि वो बिल्कुल रोजा ना रखने वाली कैटेगरी में। ओके, फर्स्ट एक कैटेगरी होगी जो बिल्कुल नहीं रख सकता, उसका इक्वेशन ये होगा, उसका डेफिनेशन ये होगा कि उसका जिस्म कबूल नहीं करता या उसके जिस्म के लिए खतरा है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि डर जाते हैं बिल्कुल, हाँ चलो खुदा भी माफ करता है, खुदा ने कुरान में भी कह दिया है कि बीमार के लिए रोजा नहीं। फॉर सम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूं लगता है कि मैं रोजा नहीं रखूंगी, मुझे डर है क्या होगा। अब वो माह रमजान का डर हम माह रजब में देख ले, वो सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल सिर्फ डर के मारे, कभी देखिए डॉक्टर कह दिया कि नहीं आप रोजा नहीं रख सकते, वो डॉक्टर के जुमले पे हम डिपेंड कर लेते, वो नहीं मुझे तो डॉक्टर ने कह दिया, मुझे तो डॉक्टर ने कह दिया, जो कि मेरे जिस्म को कोई खतरा नहीं है, उसने यूं ही कह दिया भाई तुम्हें 3 मरतबा दवाई लेना है, तुम रोजा नहीं रख सकते। 3 मरतबा मैं डिवाइड कर सकती हूँ, इफ्तार के बाद से सहरी तक मैं डिवाइड कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि 3 मरतबा मुझे दिन में ही लेना है जी।
कि मैं वो कैटेगरी में नहीं आ रही हूँ जो कैटेगरी में बिल्कुल बिल्कुल जिस्म का खतरा है, उसमें मैं नहीं आ रही हूँ। तो मैं डिवाइड करके मेरी दवाइयों को प्रॉपर कुछ वक्त इफ्तारी के बाद, इफ्तारी के एन इफ्तारी करते वक्त या करने के जो इफ्तारी का एक खजूर खाने के बाद से मैं दवाई को डिवाइड प्रॉपर कर लूं। सहरी के वक्त 1-2 बार डिवाइड कर लूं, या इफ्तारी के बाद 2 बार डिवाइड कर लूं, फिर सहरी में 1 बार कर लूं, यानी कैसे भी मैं डिवाइड कर सकती हूँ। एक दूसरा कि मुझे प्यास ना लगे, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें, ये मैं इस्तकबाल माह रमजान में बयान करूंगी डिटेल में, खैर क्योंकि ये रोजे मुस्तहब है, तो फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये महीने में हम ट्रेन हो जाए। जी, कि कहा कि वो माह रजब के महीने में हम ट्राई करें, ट्राई करके देखें, क्योंकि ये ट्राई अच्छा है कि माह रजब में पहला रखी, दूसरा तीसरा नहीं रखी, फिर 13 रख लिया, फिर 15 रख ली, फिर 27वां रख ली, 24वां रख ली, यानी वो गैप दे के रख सकती हूँ, फिर मैं देख सकती हूँ कि या मैं रख सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वो मेंटल फियर, बास औकात मेंटल फियर भी होता है, वो मेंटल फियर खत्म हो जाएगा। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि माह रजब का अगर एक रोजा, मौला ने कहा तूने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया माह रजब के रोजे ना रख के, का एक भी रोजा तू रख लेता, तेरी मौत आसान हो जाती, तेरे वक्त सकरात आसान हो जाता। अगर तू दूसरा रोजा रख लेता, तेरा पुले सिरात आसान हो जाता। तो तीसरा रोजा रख लेता, तू जहन्नम के कोई अजाब ना देखते हुए तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए, यानी तू बड़ा, जन्नत तो है ही है, लेकिन बड़ी आसानी के साथ तू दाखिल हो जाता है। और उतना ही नहीं, एक बात मैं कहूं, दूसरी हदीस अजीब हदीस है, बिहार अनवार की अजीब हदीस। दूसरी हदीस ये है, कहा जाता है कि माह रजब का अगर एक रोजा रख ले, अल्लाहु अकबर, अनबियाओं का दर्जा जन्नत में, अनबिया का जो दर्जा होगा, ये नहीं कहा हदीस ने उसके अनकरीब वैसा होगा, उस जैसा होगा, उसके अनकरीब होगा, नहीं, वही दर्जा होगा। हाय 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 हाय, एक रोजा माह रजब का जन्नत में महल के बाजू का महल होगा, अनबियाओं का नहीं, अनबियाओं को जो महल दिया जाएगा, उन्हीं महल में तुम्हें भी जगह दी जाएगी। ये मैंने आसान जुमले में समझाया है अजीजा ने मोहतरम। दूसरा रोजा माह रजब का, दूसरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पहली रजब दूसरी रजब, नहीं, माह रजब के महीने में कोई भी दिन, योर रोजा इज नाउ सेकेंड रोजा, अगर कोई दूसरा रोजा रख लेता है, रिवायत ये कहती है उसके पिछले पूरे गुनाह, आय हाय, पूरे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, उसे यूं कंसीडर किया जाएगा जैसे कि वो न्यू बॉर्न है, यानी अब नए सिर से तुम्हारे आमाल, तुम्हारा नाम आमाल की किताब बनेगी नए सिर से। तुम्हारे नाम आमाल में तमाम चीजें, तमाम नेकियों के अलावा तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाएगा, खत्म किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, और अब नए सिर से तुम्हारे आमाल को फिर तुम्हारे आमाल नामे में लिखा जाएगा। यू आर एज इफ यू आर अ न्यू बॉर्न। दूसरा रोजा। अब तीसरी हदीस। अब हो सकता है इस हदीस पर यूं लगे कि हाँ आपा ऐसा भी होगा, या आप सिर्फ ऐसा है क्या, कहीं तारीख लिखने वाले की कलम यूं ही नहीं लिख दिया? नहीं नहीं नहीं,
अजीजान मोहतरम, तीसरा माह रजब का अगर रखने वाले ने रोजा रख लिया, कहा तेरे अगले जो करने वाले कोई गुनाह होंगे हम उन गुनाहों को भी माफ कर देंगे। इसलिए मैं कह रही हूं, ट्राई कम अज कम माह रजब में रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ रखते गए। जो नहीं रखता सिर्फ फियर कर रहा है, कोई बीमारी की वजह से, प्यास की वजह से, या कभी कभार हम लेजीनेस की वजह से, काहिलियत की वजह से भी नहीं रखते माहिर, या दुनिया के फजूल दुनिया के कामों की वजह से बाज औकात शैतान भी इतना मसरूफ कर देता है, नहीं कभी मैं ये सोचूं, कभी खुदा ना करे, सिर्फ मिसाल बाज औकात मैं अपनी दे लेती हूँ, सिर्फ एक मिसाल देने के लिए। कभी अगर इंसान ये सोच रहा है कल मैं रखूंगा, फिर कोई दुनिया की चीज आ गई, वो नहीं कल मुझे वहां जाना है, कल वो खरीदना है, कल वो लाना है, कल उसको देना है, कल फलां करना है, कल मुझे ये बना लेना है। हाँ, कभी कभी शैतान हमें दुनिया के फजूल कामों में मसरूफ रख देता है, ताकि वो जानता है माह रजब के रोजे ये रख लेगा तो इसकी अहमियत, इसकी फजीलत, ये खुदा के रहमत को, ये खुदा के फजल को लूट कर इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार लेगा। फिर उसका काम क्या रह गया शैतान का? तो वो शैतान हमें दुनिया के तमाम कामों में मसरूफ रखना चाहता है, हम मसरूफ नहीं रहेंगे। खैर अजीजान मोहतरम, चलिए चंद आमाल जो सरसरी मैं कह दूं, माहे अजी जुमेरात तो हम इंशाल्लाह यूं करेंगे, लैलतुल रगायब का पहला जो नहीं रख सकता, जो बिल्कुल डर रहा है, जो सेकेंड कैटेगरी में आने वाला, एक कैटेगरी तो छोड़ दो जो रख ही नहीं सकता, एक कैटेगरी जो डर रहा है, वो शुरू करो लैलतुल रगायब से। लैलतुल रगायब के दिन पहली जुमेरात माह रजब की पहली जुमेरात से शुरू कर लो। क्या नूरानियत, ताकत, एनर्जी, पॉजिटिविटी बहुत कुछ आ जाएगी लैलतुल रगायब का दिन। मैं एक्सप्लेन करूं, आप सब जानते हैं वो रगायब, लैलतुल रगायब का दिन, और उस दिन जब हम नमाज भी पढ़ लें, वो नमाज ना छोड़े, जो कि अब मैं बयान नहीं करूंगी लैलतुल रगायब की नमाज को, लेकिन आप लोग तमाम खुद ही उस नमाज को जानते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। लैलतुल रगायब की इबादत, जी वो 12 रकत नमाज जो होती है, उसको हम तरीके के साथ जो दिया गया है उस तरीके के साथ हम पढ़ लें, वो लैलतुल रगायब का हम रोजा रख लें। एक, चलिए वो एक। दूसरा, 13 रजब का रोजा रख लें मौलाए कायनात का कोशिश करके, और तीसरा या 27 का रखो या 24 का रखो, 24 माह रजब का रख लें या 27 का, आप जैसे आपकी ताकत, आपकी एनर्जी जैसे होगी, आप जो बिल्कुल नहीं रखता वो ये 3 पहले ट्राई करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। जिसे फियर है उसके लिए मैं कह रही हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। तिब्बे मासूमी में बहुत सारी चीजें दी गई है कि जो रोजा प्यास लगेगी उसको क्या सहनी में खाना है, क्या नहीं खाना है, किस चीजों को अवॉइड करना है, किस चीजों को खाना है। वो माह रजब के महीने में आप वाजिबात को अदा करते हुए थोड़ा सा सो जाए, सोकर गुजार लो, रोजा रख के थोड़ा सोकर गुजार लो, वाजिबात को अदा करते हुए इंशाल्लाह रोजा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर अजीजान मोहतरम, और माह रजब के महीने में जुम्मा का दिन, जो जुम्मा का आएगा, ज़ोहर असर के दरमियान जो 4 रकत नमाज है वो भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी फजीलतें उस नमाज में है, बहुत सारे हमारी हाजतें पूरी हो जाएगी हर माह रजब के जुम्मा ज़ोहर असर के दरमियान। अब डिटेल में मैं बयान नहीं करूंगी वो क्या नमाज है, व्हाट्सएप पे आ जाएगा इंशाल्लाह वो नमाज को पढ़ ले। तो वो नमाज जुम्मा की वो ना छोड़े ज़ोहर असर के दरमियान। और देखिए बहुत सारे अस्कार हैं जो पढ़ने वाले अस्कार हैं,
तो रिवायत कहती है कि आप माह रजब के महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 टाइम्स पढ़े। ये नहीं पर्टिकुलरली कि मैं मुसल्ले पे बैठ के पढ़ूं, यूं भी तो हम वजू के साथ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर उतना अवेयरनेस आ चुका है कि वी आर ऑलवेज इन वजू। हम रेस्ट रूम से निकलते हैं फौरन वजू करते हैं, वो आदत हो गई है। जिसको आदत नहीं है वो आदत डाल ले। जिस अक्सर मेरे को लगता है 1% को आदत नहीं है, बाकी सबको आदत हो गई है कि रेस्ट रूम से निकले वैसे ही वजू कर लेते हैं, राइट। तो हम तो यूं भी वजू के साथ होते हैं क्योंकि हम पकाते हैं वजू के साथ, खिलाते हैं वजू के साथ, खाते हैं वजू के साथ, बहुत सारी चीजें वजू के साथ हो जाती है, इसलिए हम वजू के साथ ही होते हैं, राइट। एनीवेज, अब कहा गया कि वजू के साथ आप होते हो। सबसे पहले मैं ये कहूं, सबसे पहले एक हम माह रजब का चांद रात की दुआ हम पढ़ ले, उसके बाद हम हमारे हाथ में खाके शफा की तस्बीह रख ले। कहीं भी हम आए जाए ऐसे लपेट लेता खाके शफा की तस्बीह। मैं लपेट ले इसलिए कह रही हूँ, जरूरी नहीं कि हदीस ने नहीं कहा है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चलते फिरते वो तस्बीह के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 टाइम्स पढ़ना है पूरे महीने में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की तस्बीह मुझे पढ़ना है। यह अस्कार चलते फिरते हो जाएगा, वजू के साथ हो जाएगा। देन मेरे अंदर वो रहेगा नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, चलिए चांद रात से मैं शुरू कर। तो चलते फिरते पकाते, देखिए वो पकाने में भी असरात है। जब पकाते पकाते ये जिक्र करूं जो माह रजब का ये जिक्र है वो कर लूं, वो पकाते पकाते पकाने में भी मेरा असरात, वो पकाने में, खाने में, औलाद पर, शौहर पर, फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़े चंद तस्बीह पढ़ूं, फिर कहूं मालिक मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह, मैं अस्कार ये मेरी जबान से बयान करे, मालिक मेरी ये हाजत, दरमियान में हाजत मांगते चले जाओ, मुश्किल है तो मुश्किल को दूर करने की दुआ करते चले जाओ, और खुदावंदे आलम के साथ आप गुफ्तगू पकाते जिक्र करते गुफ्तगू करते चले जाओ। परवरदिगारा कितने सालों से मैं ये मुसीबत है, परवरदिगारा ये परेशानी है, या तेरा इम्तिहान है, अब काफी है परवरदिगारा, इस इम्तिहान को तो मैं बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अब बस परवरदिगारा तुम्हारी तरीके से दुआ मांगते जाओ। और सूरे कौसर पढ़ना है हमें, और सूरे इखलास भी पढ़ना है। सूरे इखलास 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स, ये भी है ना माह रजब के महीने में। और माह रजब की 2-2 रकत नमाज भी है। कोशिश करें पढ़ने की, कोशिश करें पढ़ने की, यही तो है। इसलिए कह रही हूं, ये उंडेल रहा है खुदा, अब उंडेलने को लेना है हमें। और ये दुआ से शुरू करो, चांद की दुआ से शुरू करो। जब चांद की दुआ से शुरू करोगे तो एक एनर्जी आ जाएगी हमारे अंदर, एक नूरानियत आ जाएगी हमारे अंदर अजीजान मोहतरम। और कहा गया कि 100 मरतबा एक रिवायत कहती है, 1000 मरतबा एक रिवायत कहती है, 10,000 मरतबा सूरे इखलास पढ़ना है। कुल हु अल्लाहु अहद। अब ये सूरा भी हम चलते फिरते पढ़ सकते हैं। परवरदिगारा पहले शुरू कर रहा, परवरदिगारा माह रजब का महीना है, मैं ये अस्कार शुरू कर रही हूँ, ये सूरा शुरू कर रही हूँ, ये कुल का सूरा है परवरदिगारा, उसके माने जहन में लेते आओ, जबान से जिक्र करते जाओ, हाजत मांगते जाओ। एक 10 आपने सूरे इखलास पढ़ लिया, परवरदिगारा मैंने 10 ये सूरे इखलास, वो सूरा के जितनी फजीलत तुम्हारे जहन में है वो बयान करते हुए, परवरदिगारा तुझ वास्ता इस सूरे का मेरी ये हाजत है, मेरे औलाद की ये हाजत है, परवरदिगारा मेरी बीमारियों को तू खत्म कर दे, परवरदिगार मेरी आखिरत को तू बेहतर बना, मेरे ईमान की हिफाजत तू कर। बहुत सारी चीजों की आप, ये नहीं कि सिर्फ मुसल्ले पे दुआ मांगना है, नहीं, आप तस्बीह पढ़ते जाओ और दुआ मांगते जाओ। माह रजब का महीना है, हाथ में तस्बीह रख ले, लपेट ले, और जब भी चाहे वो निकालो और तस्बीह पढ़ते जाओ। आजकल तो आपके पास वो बटन वाली हर एक के हाथ में आ जाती है ना वो तस्बीह, जो एक बटन प्रेस करते हुए हम और आप पढ़ते हैं, वो रख ले, वो अंगूठी वाली तस्बीह रख ले, उसको पढ़ते चले जाए, पढ़ते चले जाए, पढ़ते चले जाए। क्या सुकून मिलेगा, आए आए।
سکون و اطمینان مل جائے گا. عزیزان محترم، ماہ رجب کے مہینے سے بس بہت لمبا لیکچر ہو گیا ہے. خیر عزیزان محترم، میں دعا مانگتی ہوں. ماہ رجب کے مہینے بہت سارے دعائیں ہیں، عبادتوں کا مہینہ. جتنی عبادت ماہ شعبان میں نہیں ہے اتنی عبادت ماہ رجب میں ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ آنے والے برکت مہینے کا مالک ماہ رجب کے مہینے میں عبادت کرنے کی تو مجھے ہمت عطا کر، طاقت عطا کر. پروردگارہ تجھے واسطہ کربلا کے شہیدوں کا مالک میرے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے. پروردگار تجھے واسطہ کربلا، کیونکہ کربلا جب تک ہمارے زبان پر نہیں آتا، ذکر نام حسین ہمارے زبان پر جب تک نہیں آتا تو نہیں لگتا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی. مالک تجھے واسطہ بہت کچھ نہیں، بس ایک چیز کہو. مالک تجھے واسطہ مولا حسین کے کٹے سر کا، پروردگار وہ سر کا جو نوکے نیزے پر بلند تھا، درخت پر باندھا گیا، ظالموں نے بیلچے مارے اس مبارک سر پر. پروردگار جو بازاروں میں پھرایا گیا، درباروں میں پھرایا گیا، تشت پہ رکھا گیا. مالک تجھے واسطہ مولا حسین کے کٹے سر کا ہماری دعاؤں کو تو مستجاب کر. پروردگار جن جن کی جو حاجت ہیں ان حاجتوں کو تو بر لا. پریشان حال کی پریشانی کو دور کر، مصیبت حال کی مصیبتوں کو دور کر. پروردگارہ جو بیمار ہے انہیں تو شفائے کاملہ فرما، انہیں اتنی ہمت و طاقت تو عطا فرما کہ وہ ماہ رجب کے بھی روزے رکھ پائے. پروردگار مالک دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہم امام کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے. پروردگار جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں تو تعجیل فرما اور ان کی زیارت ہمیں نصیب کر. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ آواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پڑھنے والے اس سورہ فاتحہ کا ثواب، اس ذکر کا ثواب پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ 14 معصومین کا مالک، اس کا ثواب حاجی امیر علی اکبر علی موچنٹ، حاجی انور علی بھائی اکبر بھائی لدھانی، حاجی یوسف بھائی حسین چیول والا، زینب بھائی بنتے شیر علی چیول والا، حاجانی گلبانو بھائی بنتے جعفر بھائی، حاجی اکبر بھائی ابن نتو بھائی پریم جی، کل مرحومینز آف موچن فیملی، لدھانی فیملی، چیول والا فیملی، شروف فیملی کے ارواح کو پہنچے. پروردگارہ ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے. پروردگارہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا وادی السلام میں اعلیٰ درجہ عنایت فرما، جنت میں تو انہیں اعلیٰ درجہ عنایت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.